9 months time, they are not presented what they have done 9 months time. 9 months time. That was because 9 months time, at least this time this is a full budget. When that is a full budget for the entire term, they should reel out what they are going to. There should be some indication what they are going to do and what is their approach for another rest of the term. This is a budget that appears to have fine words, but it's far from clear what kind of devil there is going to be in the implementation details. For example, we hear a lot about infrastructure investment, but the sad truth is that in our country, something like 13% of our GDP is stuck in incomplete infrastructure projects. So unless we actually see concrete implementation, we cannot judge whether this budget is going to deliver results. There is no timeline with regard to the implementation of the goods and service tax. The finance minister has said that we'll bring it in next year. The direct taxes code has been completely junked and abandoned. This government, which used to talk about tax terrorism when they were in the opposition, there is nothing except a homely on retrospective taxation. Moreover, importantly, there is nothing in this budget for the common man. नहीं, बजट में किसानों के लिए सुविधा दी नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा दी नहीं, और नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए दी नहीं। तो गरीबी बेरोजगारी से बढ़ती है, गरीबी बेरोजगारी से बढ़ती है, गरीबी से बेरोजगारी नहीं बढ़ती है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाए तो हमारा देश संपन्न हो जाए। I have with me Mr. Rahul Bajaj, past president, CII. Sir, your reaction on the budget announced today? Very positive, which has been of a lot of people, at least from industry and even professionals. Perhaps the opposition won't look at it this way, but I'm very, very positive on this budget. Sir, how does the industry sees the investments which have been announced? You see, the details will have to be seen because the budget speech was over just about 45 minutes ago. So, without going to details, in the circumstances with the fiscal space available to the finance minister, for example, additional 70,000 crores for infrastructure. In spite of that, the finance minister says, which normally people don't, that this is not enough. So things like this, I think opposition will criticize, of course. They will criticize people like me, saying this is not for the poor, but I think there are so many schemes there for the middle class, lower middle class and the poor that I don't agree with that if there is a criticism like that. Has he been able to balance the physical requirements of what was required? In the circumstances, yes. I mean, last year's is 4.1%. For 15-16, instead of 3.6, he's done it at 3.9, which is a negligible increase to be able to invest more in infrastructure. So I think it's a very good thing, and he'll go to 3% fiscal deficit in 3 years' time. Thank you so much, Mr. Bajaj. Indeed, what Mr. Bajaj has said, that it is indeed a very positive sign for the industries. Over to the studio. SC, ST, OBC, दलित, पीड़ित, शोषित जो पीछे रह गए हैं, उनको विशेष बल देना। जिन मनरेगा की बड़ी चर्चा होती थी, इतने सालों में मनरेगा में पहली बार गांव के गरीब को रोजी रोटी मिले, इसलिए सर्वाधिक धनराशि गरीबों के रोजगार के लिए लगाई गई है। हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारी रेकड़ी चलाते होंगे, सब्जी बेचते होंगे, कपड़े की फेरी करते होंगे, उनको धन प्राप्त करने के लिए बैंक हाथ ऊपर कर देती है, उनको पैसा मिलता नहीं है। उनके लिए धन राशि सरलता से मिले, जितनी चाहिए उतनी मिले, उसके लिए मुद्रा की एक अलग योजना हमने प्रस्तुत की है, जो आने वाले दिनों में उनको काम आने वाली है। इस बजट में काले धन के संबंध में हमारी क्या सोच है, हमारा क्या कमिटमेंट है, इसको पूरी तरह हमने देश के सामने रखा है। अब काला धन वालों का खैर नहीं है, सिवाय जेल अब उनके नसीब में कुछ नहीं है।
लगातार विशेष कवरेज आप देख रहे हैं बजट पर राज्यसभा टीवी में, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आम बजट में इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, अमीरों की कमाई पर सरचार्ज, सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी। रक्षा क्षेत्र के लिए 2,86,727 करोड़ रुपए, पिछले साल के मुकाबले 11% का इजाफा। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचों को भी तवज्जो। प्रधानमंत्री ने बताया निवेश बढ़ाने वाला बजट, कहा काले धन पर सख्त कानून। कांग्रेस में विपक्ष ने बजट को बताया दिशाहीन। बजट के दौरान फौरन बाद जनता पर महंगाई की मार। पेट्रोल 3 रुपए 18 पैसे, डीजल 3 रुपए 9 पैसे हुआ महंगा। बड़ी कीमतें आज आधी रात से लागू। जम्मू कश्मीर में कल शपथ लेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे 25 मंत्री। समारोह में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी सरकार का पहला पूरा बजट आज पेश किया। वित्त मंत्री ने सरकार की प्राथमिकताओं के मुताबिक बजट में अनेक नई योजनाओं और कार्यक्रमों का भी ऐलान किया। सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर खास जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आम बजट में प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके लिए बजट में 310 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। इसका मकसद विदेशी निवेशकों को आकर्षित करते हुए भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। Manufacturing has declined from 18% to 17% of GDP, and as per the new GDP data, the manufacturing exports have remained stagnant at about 10% of the GDP. The Make in India program is aimed at making this challenge, thus of creating jobs. इसके अलावा सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के लिए 2,510 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इससे गुड गवर्नेंस से लेकर वर्चुअल क्लासरूम, साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की कोशिश है। कौशल विकास और उद्यमशीलता के लिए 1,500 करोड़ रुपए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 4,230 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गंगा की सफाई से जुड़े नमामि गंगा कार्यक्रम के लिए 2,100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। निर्भया कोष के लिए 1,000 करोड़ रुपए बरकरार रखे गए हैं, जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए 100 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने किया है। Cleanliness of households and cleanliness environment are very important social causes. The fourth pillar of my taxation proposal this year therefore relates to initiatives for the Swachh Bharat Abhiyan. In my direct tax proposals, I have proposed 100% deduction for contributions other than by way of CSR contributions to the Swachh Bharat Kosh. A similar tax treatment is also being proposed for the Clean Ganga Fund. अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार देने के लिए मंजिल नाम से नई योजना शुरू होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, असम में एम्स खोले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश में प्रबंधन संस्थान IIM खोले जाने का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। कर्नाटक में भी IIT की स्थापना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्षी पार्टियों ने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट की आलोचना की है। उन्होंने इसे कॉर्पोरेट हित वाला बजट बताया। विपक्षी पार्टियों ने बजट को दिशाहीन और गरीब विरोधी करार दिया है। आम बजट पेश करने के बाद से वित्त मंत्री अरुण जेटली विरोधी पार्टियों के निशाने पर हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इस बजट में कुछ नया नहीं है। कांग्रेस ने बजट को कॉर्पोरेट के हित वाला बजट बताया है। हम तो बोल रहे हैं तो प्रो कॉर्पोरेट है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट है और प्रो रिच है, नॉट फॉर प्रो पुअर, नॉट फॉर ग्रोथ, नॉट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। मैं इसको एक सामान्य बजट मानता हूं। काफी मामलों में मध्य वर्ग पर बोझा पड़ेगा और उसका एक उदाहरण सर्विस टैक्स है, क्योंकि आखिरकार वो कस्टमर के ही सिर पर पड़ता है। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों ने भी बजट पर निराशा जताई है। इन पार्टियों ने इसे जन विरोधी बजट बताया। लेकिन बजट में किसानों के लिए सुविधा दी नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए सुविधा दी नहीं और नौजवान जो बेरोजगार हैं उनके लिए दी नहीं, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी से बढ़ती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। आम जनता के हित में ये बजट हमें कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। ये कॉर्पोरेट का, बड़े व्यापार का, शहर का बजट है। इसका गांव से, देहात से, खेती से कोई वास्ता नहीं। कॉर्पोरेट के लिए बजट है,
गरीबों के लिए कुछ ज्यादा नहीं दिया गया, एनआरईजी का एलोकेशन एक ही रख गया और कॉरपोरेशन टैक्स 5% कम कर दिया। बहुत उम्मीद थी, लेकिन रेल बजट की तरह ही देश का आम बजट भी आम आदमी के लिए निराशाजनक है। हालांकि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे आम लोगों का बजट कहा है। नव विक्रम सिंह और प्रणव गोस्वामी के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो इस बजट के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण हमारे साथ, हमारा स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ रंजन डैश हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार हैं। सुरजीत साहब, बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं भारत आपसे आपके पास आना चाहूंगा। 2 तरह की बातें हो रही है। सरकार ने दावा किया बजट के बाद कि ये कॉर्पोरेट और गरीब दोनों के हित को साधने वाला बजट है। विपक्ष कह रहा है कि यह गरीब विरोधी है, प्रो कॉर्पोरेट है। आपकी नजर में दोनों तर्क कितने सही और कितने गलत? देखिए, ये तो बैलेंस बजट है। गरीबों का भी के लिए भी इसमें कुछ है, कॉर्पोरेट के लिए भी है, मिडिल क्लासेस के लिए भी है, और अगर एक तरीके से देखें तो किसी के लिए कुछ खास नहीं है। लेकिन कोई बड़े रिफॉर्म्स इसमें नहीं है। कई तरीके से इन्वेस्टमेंट साइकिल को दोबारा चालू करने की कोशिश की गई है। पॉपुलिज्म भी है मिडिल क्लासेस के लिए, गरीबों के लिए इंश्योरेंस स्कीम है, और जो जितने भी गरीबों के लिए जो प्रोग्राम्स आए, शायद ये नहीं आते अगर दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी की जो हालत हुई है वो नहीं हुई होती, तो शायद प्रो कॉर्पोरेट बजट आता। लेकिन उनको बैलेंस करके इस टाइप का बजट लाना पड़ा, जिसमें गरीब तबका भी खुश रहे, कॉर्पोरेट को भी खुश करने की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस पर छाप है, इससे नौकरियां बनेगी, पर कैसे बनेंगी, कौन से रास्ते से बनेंगी, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव्स कोई बहुत बड़े नहीं है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगता है इस दिशा पे जाने पे अगर सरकार जाएगी तो उनका मानना है कि ये सब कुछ काम हो जाएंगे। रंजन, आपकी नजर में, मैं अगर अब कॉर्पोरेट की बात करूं, निवेश बढ़ाने की बात जेटली साहब ने की है कि इसमें वो तमाम कोशिशें की गई हैं जिसके जरिए निवेश बढ़े और जो साइकिल है इकोनॉमी का वो तेजी के साथ घूमना शुरू हो। किस तरह के कदम आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो तमाम फैक्टर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि पिछले 12 से 24 महीने के दरमियान, वो इस साइकिल में क्या बदलते हुए नजर आएंगे? क्या उसके जरिए जो रफ्तार का पहिया है वो घूमेगा तेजी के साथ? ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। जैसे कि उन्होंने शुरू में ही अपना बजट स्पीच में बताया कि स्टेज इज सेट फॉर इंडिया टू फ्लाई। तो ये एक प्रो कॉर्पोरेट, प्रो रिच, एंटी पुअर, प्रो पुअर ये बजट ना होके एक प्रो इंडिया बजट हो सकता था, जो कि भारत को एक दूसरे लेवल पे ले सकता था। वैसे कंडीशंस जो है बड़े अच्छे, ये मौका बहुत बढ़िया था। एक तो सरकार भी जो नई आई है तो एक आशा और आकांक्षाओं का वेव के ऊपर राइड करके आया हुआ है, तो बहुत कुछ आशा किया जा रहा था इस बजट से, जो कि इसने मिस कर दिया। बड़ा विचित्र बजट है। अब ये बजट क्यों है विचित्र? इसलिए है क्योंकि देखिए कि उन्होंने सर्विस टैक्स बढ़ा दी। जैसे आपने कहा कि एक्साइज मतलब सेस लगाकर पेट्रोल और डीजल पे भी उसका तुरंत 3 रुपया 4 रुपया पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ गया। अच्छा, एक्साइज रेट को भी बढ़ा दी। तो टैक्स जो, अच्छा कॉर्पोरेट पे भी देखेंगे आप तो सरचार्ज के जरिए 2% और जो अमीरों पे और कॉर्पोरेट्स पे लगा, तो उससे उन्होंने कहा है कि 4 साल के बाद या 4 साल के अंदर हम कॉर्पोरेट रेट जो टैक्स रेट है उसको 30% से 25% करेंगे। लेकिन अभी इस बजट में ये किया है कि 2% सरचार्ज लगा दी, ताकि कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है, जो कागज पे है, वो 36% हो जाएगा। अब ये तो टैक्स तो सब पे लगा है, लेकिन इसमें देखिए कि जो ग्रॉस टैक्स रिसीट है सरकार की, एक अगर जो जीडीपी का आप एक परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो गिर रहा है। और इस साल जो है 13.3% से अगला साल जो बजट करे हैं वो 12.6% पे जा रहा है। और खर्चा के साइड में क्या हो रहा है? खर्चे के साइड में ये हो रहा है कि एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगेन ये इनका जो है 9.9% से 10.3% पे बढ़ रहा है। तो ना इन्होंने फिस्कल कंसोलिडेशन अचीव किया, जो सरकारी
फाइनेंसेस में जो एक स्थिरता लाना है या जो एक बैलेंस लाना था ना उन्होंने अचीव किया। उन्होंने तो वो कंसोलिडेशन प्लान जो था उस ऑप्शन पर भी मैं कहूं कि मैं रिजल्ट नहीं दिख रहा ना किसी सेक्शन को उन्होंने खुश किया। तो ये इसीलिए मैंने इसको विचित्र बजट बताया और मैं ये इसलिए कहा कि ये एक मौका खो दिए हैं, बहुत बड़ा मौका था, जैसे कि वो खुद बता रहे हैं और कल इकोनॉमिक सर्वे ने भी बताया था। देखिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिर रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं, यूरिया प्राइस 30% गिर गया इंटरनेशनल मार्केट में। ये अलग बात है कि हम लोगों ने सही टाइम पे इंपोर्ट नहीं किया तो यहाँ यूरिया शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन ये बड़ा कंडीशंस बड़े राइप है। रूपी जो पहले गिर रहा था, तमाम फेवरेबल कंडीशंस थी, उसके बावजूद वो नतीजे वाला बजट नहीं दिख रहा, जो नेगेटिव टेरिटरी में चला जा रहा है। मैं इस पर इन्फ्लेशन पर भी आऊंगा और जो अलग अलग पॉइंट्स उस पर कहूं से पहले मुझे साहब, जिस तरीके की चर्चा हो रही थी, तमाम इकोनॉमिस्ट और लोग ये मान रहे हैं कि फेवरेबल कंडीशंस थी, चाहे वो ऑयल पूल को लेकर हो, जैसा कि कहा कि भाई यूरिया के रेट, छोटे छोटे फैक्टर थे, लेकिन वो क्लब करके एक बेहतर रिजल्ट की तस्वीर पेश कर सकते थे। क्या आप भी इस पूरे बजट से नाउम्मीद होते दिख रहे हैं या आपको लगता है कि संकेत अच्छे हैं, दिशा सही है, इंप्लीमेंट में देखना होगा? नहीं, मैं तो इस बजट से नाउम्मीद हूं, पर इसलिए कि जो स्थिति पहले बनी आई हुई थी, जिस तरह की नीति चली आ रही थी, पिछली सरकार भी जो कर रही थी, इस बजट में भी उसी रास्ते पे जाने का प्रयास किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि एक परिस्थिति बनी हुई है कि जो टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास है वो हर साल बजट करती है, जो हकीकत ये होता है कि जो रेवेन्यू आता है उससे कम होता है, लेकिन आपका कोशिश है कि आप डेफिसिट को कम करें, तो आप उसलिए आप खर्चे को कम करते हैं। ये ऐसी स्थिति में जब आपका निवेश में ठहराव है, औद्योगिक उत्पादन में ठहराव है, और उस ठहराव की परिस्थिति को आप और मजबूत कर रहे हैं जब आप खर्चे को कम कर रहे हैं, और उसके कारण ये साइकिल बना हुआ है कि रेवेन्यू भी नहीं होता है और आपका खर्चा भी कम करता है। तो यही इसी बजट में भी किया गया है। हमारे अर्थव्यवस्था को जरूरत यह है, और हमारे यहाँ जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दुनिया में अगर आप देखें तो बहुत कम है, उसको बढ़ना चाहिए, खर्चे को बढ़ना चाहिए, लेकिन दिशा उल्टी तरफ है। आज भी जो टैक्स की स्थिति है वो 2008 के मुकाबले में ज्यादा कमजोर है। तो आप जो है डेफिसिट को कम करने का पूरा बोझ जो है सार्वजनिक खर्चे पर डाल रहे हैं, और उसका असर यह हो रहा है कि आप लोगों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए भी आपके पास साधन नहीं है, और जो ये ठहराव की स्थिति को बदलने की जो जरूरत है वो भी नहीं कर पा रहे। और आम लोगों के लिहाज से भी खासे निराश दिख रहे हैं, क्योंकि आयकर छूट की जो सीमा है वो बढ़ने की उम्मीद लगाया हुआ था मध्य वर्ग, लेकिन उससे निराशा हाथ लगी है। आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया। वहीं बस सर्विस टैक्स को बढ़ाकर 14% कर दिया गया, जिससे अब बाहर खाना पीना, फोन के बिल समेत कई सारी सर्विसेज महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री ने जीएसटी को अगले साल से लागू करने की बात तो कही है, पर गैर पर अमल फिलहाल 2 साल के लिए टाल दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में मिडिल क्लास लोगों को अपना ख्याल खुद रखने की नसीहत दी है। उन्होंने आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया है और व्यक्तिगत आयकर में हर वर्ष 2.5 लाख रुपए तक की छूट जारी रहेगी। वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वाले व्यक्तियों पर 2% सरचार्ज लगाया जाएगा। साथ ही स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए जरूरत पड़ने पर 2% सेस भी लगाया जा सकता है, जिसका भार भी आम आदमी पर पड़ेगा। Our stated policy is to avoid surprises and instability in tax policy. Exemption to individual taxpayers will, however, continue since they facilitate savings and get transferred to investment and economic growth. हालांकि वित्त मंत्री ने बचत को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग के करदाताओं को रियायतों का तोहफा भी दिया। अब व्यक्तिगत करदाताओं को सालाना 4,44,200 रुपए की आय पर विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट उपलब्ध होगी। स्लैब कभी बढ़ सकते हैं, मैं उसको रूल आउट नहीं करूंगा, लेकिन सरकार के पास फिस्कल स्पेस कितनी है ये भी मुझे ढूंढनी पड़ेगी, और राज्यों को इतने पैसे देने के बाद मेरी जो फिस्कल स्पेस थी बहुत छोटी हो चुकी थी। लेकिन मैंने स्लैब्स न बढ़ाकर लोगों को मजबूर करने की कोशिश की कि वो बचत करें। आम बजट में सेवा कर की दर 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसकी वजह से लगभग सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा।
हालांकि कृषि उत्पाद की ढुलाई में सेवा कर से छूट जारी रहेगी। The only pain point is the service tax, which has been increased from 12% to 14%, which certainly will cause discomfort to some of the industry. बजट में कंपनी आयकर की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अगले 4 साल में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी करने का भी ऐलान किया है। इसके मुताबिक कॉर्पोरेट कर की दर 4 साल में 30% से घटाकर 25% पर लाई जाएगी। GAAR यानी गार पर अमल 2 साल तक टालने का फैसला किया गया है। अब 31 मार्च 2017 तक किए जाने वाले निवेश पर गार लागू नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार अगले साल से वस्तु और सेवा कर यानी GST को लागू करने के लिए कदम बढ़ाएगी। This reduction in tax rate will be money neutral. But the very important thing is going to be simplification of the tax system, the tax administration, and clarity that you don't have exemptions, so you have less leeway for litigation and complications. वित्त मंत्री ने काले धन पर लगाम लगाने और बेनामी लेन देन की रोकथाम के लिए एक नया कानून इसी सत्र में लाने की भी घोषणा की है। नए कानून के तहत 1 लाख से ज्यादा किसी भी खरीद और बिक्री के लिए पैन कार्ड की जरूरत होगी और 20,000 से ज्यादा का लेन देन नकद किए जाने पर रोक लगा दी जाएगी। नए विधेयक में विदेशी संपत्ति छिपाने वालों के लिए 10 साल के कारावास की सजा का भी प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उद्योग और कॉर्पोरेट जगत ने बजट का स्वागत करते हुए उसे बेहतर भविष्य का बजट करार दिया है। उद्योग जगत का मानना है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वादे के मुताबिक ही बजट में ऐलान किए हैं, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। उद्योग जगत ने वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से पेश किए गए बजट की सराहना की है। उद्योग जगत का मानना है कि बजट के जरिए देश में आधारभूत संरचना को विकसित करने की कोशिश की गई है। उद्योग जगत को उम्मीद है कि भारत अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। बार बार उन्होंने ये बात कही है अबाउट लेस गवर्नेंस, मतलब लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। उसका मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म इफेक्ट अच्छा रहेगा। It covers infrastructure, it covers social, it covers youth, which is very important, it covers senior citizens. So directionally, it's tremendous. And what I liked was that the states will be an equal partner because we are a federally governed state. कॉर्पोरेट टैक्स में छूट को भी उद्योग जगत ने सकारात्मक तौर पर लिया है। कॉर्पोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 25% करने का ऐलान किया गया है। The corporate tax, and this is one very strong suggestion of the CII for a long time actually, and this is the first time to make India competitive, to doing business in India competitive was so important. So it's important that you lower taxes, you widen the tax net. That's the direction that's what one is seeing. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में व्यापार में आसानी से जुड़े कई उपायों की घोषणा की। मसलन PPP परियोजनाओं में विवादों के निपटारे के लिए विवाद निपटारा प्राधिकरण का गठन, वायदा कारोबार आयोग का सेबी में विलय और रेल और सिंचाई क्षेत्र में निवेश के लिए टैक्स फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने का फैसला किया गया है। हालांकि उद्योग जगत की नजरें अब बजट के पारित होने पर हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। एक आखिरी रिएक्शन भारत चलते चलते कि जिस तरीके से रूरल इंडिया की बात हो रही थी, सोशल सेक्टर्स की स्कीम्स की बात हो रही थी, क्या उस दिशा में जो मैं कहूं कि दायरा था उसको बढ़ाने की कोशिश बजट में की गई कुछ योजनाओं के जरिए? बिल्कुल की गई है और अच्छे तरीके से की गई है। मेरा कहना ये भी है क्योंकि ये इनका राजनीतिक कंपल्शन है, इसलिए रूरल एरियाज के लिए, लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ नहीं किया गया है। वहां पे कुछ इंसेंटिव नहीं दिए गए हैं। ये तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जो कि कई बजट पहले पेश कर चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, उन्होंने भी कहा है कि 70% जनता अगर इस देश की गाँव में रहती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर के लिए आपको कुछ करना चाहिए था, लेकिन वहां पे ये बजट दिशाहीन है। बहुत संक्षेप में, क्या वाकई रूरल इंडिया कहीं कुछ उम्मीदों से बिल्कुल दूर खड़ा? नहीं, रूरल इंडिया तो दूर नहीं खड़ा है, बल्कि ये तो ऐसा लग रहा है अब तो कोई इलेक्शन नहीं है। वो इलेक्शन जो है वो बिहार और बंगाल में है, जिसके लिए अलग से इन्होंने जो फाइनेंस कमीशन ने 42% डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेस में स्टेट्स का शेयर कर दिया, उसमें भी बिहार और बंगाल सबसे ज्यादा गेन कर रहे थे। उसके ऊपर फिर इन्होंने और जेनरसिटी दिखाई है और उनको दे दिया। झारखंड को नहीं मिला, ओडिशा को नहीं मिला, जबकि और ये बता रहे हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स को वेस्टर्न रीजन से ईस्टर्न रीजन में चुनावी कारणों से 2 राज्यों का खास ख्याल रखा गया है। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन रूरल इंडिया के लिए बहुत कुछ है। इसमें जो स्टेट्स को ट्रांसफर हो गया है रिसोर्सेस, वो तो बहुत है। तो इसमें कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि आप पिछले साल से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि जो सेंट्रल स्कीम्स है
उसमें कई सेंट्रल स्कीम्स जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। जी रंजन, बहुत सी कमी है। स्कीम का जो फंडिंग है पैटर्न उसको चेंज कर दी गई। कार्यक्रम के अगले हिस्से में इस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा और आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। और छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद विशेष कवरेज चलती रहेगी। बजट से जुड़े कुछ अलग पहलू और आम आदमी से जुड़े कुछ संकट, मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, उसके अपने बजट से जुड़े हुए वो क्या मैच कर पा रहे हैं, उस पर चर्चा लगातार आप आशा टीवी पर देखते रहिए। छोटा सा ब्रेक के उस पर ये चर्चा जारी है।